good afternoon to our speakers, Ms. Richa Anirudh, Gannicus members, BNI Ahmedabad region, and BNI members from across India. Welcome to the unique series of Learning from a Legend organized by BNI Gannicus chapter, sponsored by PB Ceramics, Manik Ratna, Pelicar Air Condition, supported by Vintana, Umia Motors, and Radhe Premni Mithas. This session will be live on social media by vyaparjagat.com. Thank you for participating in today's unique Gannicus Virtual Learning Series 5. Learning from a Legend series is live on every Monday and Friday of the week. Remember, just a few special announcements today. Please mute your line but keep your video on. We will have a special question and answer round. Please drop your questions in the chat box. One of our team coordinator will pass those questions to me. Please be sure you are using high-speed internet, a high-quality headset, and a webcam. Be sure you are in front of a professional background. Good afternoon, everyone, and a special warm welcome to our legendary speaker and a journalist, Ms. Richa Anirudh, and observers from over the regions. I will now like to start this part of series by introducing Learning from a Legend team of Gannicus chapter. My name is Sudarshan Golecha as President, Mr. Jignesh Patel as Vice President, and Jaimin Supriya as Secretary Treasurer. The LFL team is of Vivek Parikh, Dishan Shah, Rishabh Zaveri, Rahul Keshwani, Neelav Parekh, Urja Patel, Bhaumik Jasani, and Sujan Singh Gular, who have helped for success of the event. I would now like Mrs. Meenal to introduce today's elite legendary, Mrs. Richa Anirudh. Over to you, Meenal. Thank you, Sudarshan. I would like to introduce Mrs. Richa Anirudh to everyone over here. So Mrs. Richa Anirudh is the producer, anchor of YouTube show Zindagi with Richa. She is best known for hosting the talk show Zindagi Live, previously on IBN 7, then on ETV Network, which won the Best Talk Show Award in all its 6 seasons. Her show are a powerhouse of emotions and raise many burning social issues. The motto of all her interview is telling stories, touching lives. Since 2014, Richa has been an RJ on 92.7 Big FM. From 2014 to 2016, through her breakfast show, Delhi Meri Jaan, she used to highlight all the civic and social issues of Delhi. Presently, she presents a show called Big Heroes, where she interviews unsung heroes of the society. Also, she's leading a campaign on women's safety on 92.7 Big FM. Richa has started an NGO called Meri Ladli, which she works to empower young girls through education and skill development. She's also the editor-in-chief of Social Life magazine, an exclusive monthly magazine for the social community. The magazine encourages teenage students to express themselves through reviews, blogs, poems, and stories. This is the magazines by the students for the students. Richa has been appearing as an expert advisor since 2011 in the much acclaimed TV quiz show Kaun Banega Crorepati, hosted by the superstar Amitabh Bachchan. In 2012, she was selected for UK government's prestigious Chevening Gurukul Scholarship, which is offered to only 12 Indians per year. Richa has received various prestigious honors and awards. Born in a small town of MP, brought up in Jhansi, presenting the Jhansi Ki Rani itself, Richa Anirudh. Thank you, Vivian. So is it over to me now? Yeah, it's over to you, Richa. Yes. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. वो लेजेंड वर्ड से मुझे थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, बट एनीवेज तो मुझे बोला गया कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरैक्टिव सेशन ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो आई कैन सी, आई थिंक व्हाट हाउ मेनी वी हैव 71 पार्टिसिपेंट्स हियर. 72 मैम. आप सबका स्वागत. एंड प्लीज वी विल ट्राई एंड कीप इट एज इंटरैक्टिव एज वी कैन. थोड़ा सा बता देती हूँ. हमेशा ही पूछा जाता है कि जर्नलिस्ट कैसे बनी, तो somehow मैं कह सकती हूँ कि जर्नलिज्म मेरी जिंदगी में थोड़ा सा बाय डेस्टिनी आया. आई नेवर प्लान्ड, बिकॉज एज मीनल सेड, छोटे शहरों में हम पले बड़े हैं. 80s में जर्नलिज्म कोई ऐसा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या 2-3 प्रोफेशंस और IAS, सिविल सर्विसेज कर लो. तो मैं आप सबको एक एप्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में पता होगा. सो व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तब ये होता है कि भाई प्लेन BSc कर रहे हैं, कुछ एक एडिशनल कुछ लेना चाहिए. तब मैंने एप्टेक में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया, विच वाज आई थिंक 93, 92, 93.
और जब मैं उसका एक 3 साल का सॉफ्टवेयर का कोर्स, और अब मुझे कई बार लगता है व्हेन आई लुक बैक कि ओ माय गॉड, पहला मेरा लाइफ का फेलियर था जब मैं पीएमटी में सिलेक्ट नहीं हुई एज अ बायो स्टूडेंट। सारे बच्चों को जैसे भेज दिया जाता है कि पीएमटी की तैयारी करो, मैं मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुई, आई फेल्ड देयर। फिर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया, वो कोर्स करने जब उसका 3rd ईयर करने में दिल्ली आई तो एक संस्था, पता नहीं आप में से आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्पिक मेके जानते हैं आप लोग? स्पिक मेके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो कल्चरल उसके लिए काम करता है। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। तो मैं झांसी में स्कूल से उसकी वॉलंटियर हुआ करती थी। दिल्ली आई तो वापस स्पिक मेके के साथ काम करने लगी, और कोइंसिडेंस जो मैं आपको बता रही हूँ 96 की मेरे ख्याल से बात है, 96 की, दूरदर्शन वाले आए थे स्पिक मेके पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। तो जैसे सोचिए आप लोगों के ऊपर आप सब है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने आए, आपसे कहा जाए भाई कैमरे के सामने एक साउंड बाइट दे दो, तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था साउंड बाइट क्या है, मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। और वो दूरदर्शन के जो कैमरा पर्सन आए थे उन्होंने वो प्रोड्यूसर से कहा कि ये अच्छा बोलती है, हिंदी अच्छा बोल रही है एंड शी इज वेरी फोटोजेनिक। सो वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि आपने कभी टीवी पे ट्राई किया? अब आप सोचिए, ये बात मैं आपको 1996 की बता रही हूँ, कितने साल हो गए, 20 हाउ मेनी आई डोंट नो 24। सो मैंने कहा सर मैं तो झांसी से आई हूँ, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो कहाँ टीवी वगैरह। तो उन्होंने मुझे उस जमाने में पेजर नंबर होता था, पेजर नंबर दिया कि आप मुझसे बात कीजिएगा, आई माइट हैव समथिंग फॉर यू ऑन टीवी। ठीक है, मैं भूल गई, 1-1.5 महीना मैंने उनको कुछ मैसेज नहीं किया। 1-1.5 महीने बाद ऐसी लगा, मैं कहा चलो एक मैसेज छोड़ देते उनके पेजर पर रमेश शर्मा जी को। तो मैंने मैसेज किया कि सर कल मैं आपके ऑफिस आऊंगी, आपको याद होगा मैं ऋचा, मेरा तब नाम बादल, ऋचा बादल था। तो अगले दिन मैं दूरदर्शन संसद मार्ग पे जो दूरदर्शन का ऑफिस है वहां पहुंची, तो रमेश शर्मा जी तो नहीं थे, उनके असिस्टेंट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप, उन्होंने एक मुझे डेट दी कोई कि आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट वगैरह लिख लीजिएगा गुलाबों के ऊपर ये सब, और आप थोड़ा सा तैयार वैयार होके आ जाइएगा। आपको एक शो हमने दे दिया है, अंकुर, गार्डनिंग पे। उस जमाने में पता नहीं अब आता है नहीं, गार्डनिंग पर संडे को अंकुर आता था कि क्या लगाएं, मौसम का क्या। मैंने कहा बट आपने मेरा स्क्रीन टेस्ट या कुछ ऑडिशन तो लिया नहीं है। तो बोले वो जो आपकी बाइट हमने रिकॉर्ड की थी वही आपका ऑडिशन था, उसमें हमने देखा कि आप हिंदी अच्छी बोलती हैं, देखने में भी ठीक है, फोटोजेनिक है, कैमरा लुक्स आपके अच्छे हैं, तो आपको हमने ये शो दे दिया है। सो दैट्स हाउ माय जर्नी विद टीवी स्टार्टेड। तो जो मैंने कहा ना कि डेस्टिनी थी, शायद पता नहीं कहाँ से वो हो गया। एंड उस जमाने में हमको एक शूट के 500 रुपए मिला करते थे, और महीने में, बिकॉज वो दूरदर्शन का एक होता है यूर अ कैजुअल आर्टिस्ट, तो महीने में 2 ये मैं किया करती थी अलॉन्ग विद स्पिक मेके। एंड आफ्टर दैट मैं स्पिक मेके की वॉलंटियर के बाद फुल टाइम एम्प्लॉय भी बन गई थी, बिकॉज दे वांटेड समवन टू टेक केयर ऑफ देयर ऑफिस। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं अजमेर चली गई, जहां मैं पहली बार मीनल से मिली। और चांस की बात है, अगेन घर में कुछ, मतलब ऐसी बैठी हुई थी, कोई काम नहीं था, पेपर में एक ऐड देखा कि एक वहां का राजस्थान का बड़ा लीडिंग लोकल डेली है दैनिक नवज्योति, उनको डेस्क पे काम करने के लिए कोई लोग चाहिए थे। चूंकि मेरे पास दूरदर्शन का एक एक्सपीरियंस था, मैंने अप्लाई किया, वहां नौकरी लग गई। तो 2 साल मैंने अखबार में काम किया। तो ऐसे करते करते फिर वापस 2001 में दिल्ली आई, स्ट्रगल फिर दोबारा से शुरू किया, दूरदर्शन से ही शुरू हुआ, एक इवनिंग लाइव शो आता था, अगेन 500 रुपीज पर शूट से शुरू किया। फिर पता चला, बिकॉज स्पिक मेके में मेरे म्यूजिक के फील्ड में बहुत कनेक्ट थे, तो किसी ने कहा कि सितार वादक पंडित रविशंकर जी, तब उनको ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है। तो मैंने कहा कि भाई बट मैं तो मीडिया में नौकरी ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उनके यहाँ काम करते करते अपना मीडिया का परस्यू कर सकती हो। तो फिर मैं गुरुजी के यहाँ, विच आई थिंक, जैसा सुदर्शन आप कह रहे थे कि लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, पंडित रविशंकर जैसी एक हस्ती के साथ समय बिताना, इतने बड़े आर्टिस्ट जिनको पता, आज पूरी दुनिया में अगर लोग शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो पंडित रविशंकर की वजह से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को विदेश लेकर गए। एंड टू हैविंग टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विद अ पर्सन लाइक हिम। और 1 साल उनके साथ रही, बीच में थोड़ा फ्रीलांसिंग मीडिया में करती रही। एंड 2002 में फाइनली मुझे जी न्यूज से कॉल आया। तो वो मेरा दूसरा एक टर्निंग पॉइंट कि जी न्यूज में देन आई एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ हार्ड न्यूज, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर रिपोर्टिंग करी। 2002 से 5 मैंने बहुत काम किया, फील्ड में गए, प्राइम टाइम एंकर बन गए, रात के 8 बजे की 9 बजे की बुलेटिन मिलनी शुरू हो गई। 2005 में फिर मुझे एक नए चैनल जो शुरू होने वाला था, दैनिक जागरण ग्रुप ने कहा कि चैनल 7 शुरू हो रहा है, आप हमारे यहाँ आइए। आई शिफ्टेड टू चैनल 7, जो कि 2006 में IBN 7 बन गया, नेटवर्क 18 ग्रुप। आप लोग सब बिजनेस वाले तो आपको पता होगा, शायद राघव बहल ने टेक ओवर किया दैनिक जागरण से, एंड इट बिकेम नेटवर्क 18 ग्रुप, जो कि एक टाइम आया था जब बहुत बड़ा, आई थिंक द बिगेस्ट मीडिया ग्रुप उस समय हो गया था, क्योंकि उसमें CNBC भी था, होम शॉप 18 भी था, CNN, IBN 7, सो वी वर अ बिग न्यूज नेटवर्क।
2013 तक मैं वहीं रही। 2007 में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जो कि जिंदगी लाइव मिलना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 2002 से जब मैंने न्यूज पढ़नी शुरू की और 2006 तक आते आते मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये वो दौर था, अगर आप लोगों को याद हो, कि सांप, बिच्छू, नाग, नागिन और एक बच्चा गड्ढे में गिर गया है, तो मतलब आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कंसर्न ऑफ यू नो चाइल्ड, लेकिन वो 12 घंटे की नॉन स्टॉप न्यूज उस पर चलना, तो जिस तरह से न्यूज का तमाशा बनना वो शुरू हो चुका था। तो मैं बार बार सोचती थी कि मैं ये करने तो नहीं आई थी, तो एक अंदर से ना वो बेचैनी शुरू हो गई थी। और मुझे लगता है कि 2007 में अगर जिंदगी लाइव मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं न्यूज छोड़कर भाग चुकी होती, वो दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। सो अगेन डेस्टिनी कम्स इनटू प्ले, कि ये जिंदगी लाइव जो था वो पहले किसी और नाम से एक फेमस हीरोइन एंकर करने वाली थी। उनका समहाउ डील फिक्स नहीं हो पाया, जो भी था, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द नेटवर्क 18 मैनेजमेंट एंड हर, एंड वो डील क्रैक नहीं हुई। तो ये हुआ कि अब कौन करे क्या करे, अच्छा चलो रिचा से करा लेते हैं, एक अपने होता है ना कि घर की मुर्गी। तो ज्यादा किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आप लोग सब बिजनेस वाले लोग हो तो आप समझते हो कि कोई अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, कुछ नहीं हुई, क्योंकि कहाँ तो वो एक हीरोइन करने वाली थी, अब कहाँ वो रिचा करेगी, तो अपनी चैनल की एंकर है, इट्स ओके। आई मीन आई वाज अ प्राइम टाइम एंकर, वो सब कुछ था उस समय, बट आई मीन यू कांट कंपेयर योरसेल्फ टू एन एक्ट्रेस। तो पहले साल किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया, हमारे चैनल के मार्केटिंग ने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पहले साल हमको, जैसा भी मीनल ने कहा, हमें हर साल बेस्ट टॉक शो का अवार्ड मिला, तो पहले साल जब हम वो एक ट्रॉफी लेकर आए, बेस्ट न्यूज टॉक शो, इंडियन टेलीविजन अकेडमी ने अवार्ड दिया, तब लोग थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हुए कि अच्छा ये टीम हमारी छोटी सी एक 5-6 लोगों की टीम एक अच्छा काम कर रही है। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स देयर वाज द गोल्डन पीरियड 2007 के बाद, मैं कहूंगी 8 में जब एक्नॉलेज होना शुरू हुए, 8 से लेकर 13 तक वाकई मतलब मैं कहूंगी कि हमने गोल्डन पीरियड एंजॉय किया है, जहां सारे अक्रॉस न्यूज चैनल जिंदगी लाइव की बात होती थी। कोई तबका नहीं रह गया था, चाहे बिजनेस कहें, चाहे फिल्म्स कहें, चाहे पॉलिटिक्स कहें, मतलब हम लोग के पास फोन आते थे कि हमको शो पे बुला लीजिए, हमारा इंटरव्यू कर लीजिए, पीपल वांटिंग टू बी कॉल्ड, इनवाइटेड ऑन द शो। मुझे कई बार पॉलिटिकल रिपोर्टर्स आके कहते थे कि अरे वो नेताजी कह रहे हैं कि क्या तुम लोग फालतू इंटरव्यू लेते हो, हमको जिंदगी लाइव में बुलाओ। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, आई कहेंगे ग्लोरियस टाइम था हमारे लिए। वो बहुत अच्छा काम किया। और आजकल बहुत सारे जो इश्यूज अब उठ रहे हैं, थैंकफुली, अभी दीपिका ने फिल्म की छपाक, आई एम ग्लैड समबडी फ्रॉम बॉलीवुड स्पोक अबाउट एसिड अटैक, लेकिन हमने ये बात तब कर ली थी। मैंने मतलब 6 सीजन हमने अगर जिंदगी लाइव के और फिर 1 सीजन जिंदगी लाइव रिटर्न्स का बनाया है, तो आई थिंक मैंने 3 एपिसोड एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ किए हैं, जहां मैं इतने डिस्टेंस पर बैठकर एक लड़की से बात कर रही हूँ जिसके ऊपर हमला हुआ है, तो वो आसान नहीं होता। हमने होमोसेक्सुअलिटी, हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात बाद में बहुत होने लगी, सत्यमेव में आमिर ने उठाई। हमने जब उठाई थी तो तब कोई बात नहीं करता था, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स माने जाते थे। डाउरी एक्ट का मिसयूज, उस समय कोई बात नहीं करता था, सब फेमिनिज्म की तो बात करते थे, लेकिन बहुत सारी महिलाएं उस एक्ट का मिसयूज करने लगी हैं। इस पर मीडिया में मुझे लगता है सबसे पहले हमने बात की थी जिंदगी लाइव। डोमेस्टिक वायलेंस, आप मतलब कोई भी सोशल इशू इंडिया का आप नाम लीजिए और मैं बोलूंगी हमने इस पर शो बनाया है। लेकिन आई थिंक हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हमें जिस टॉपिक ने दी, वो अगेन आप लोग शायद समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज जो है आज भी रैग्स टू रिचेस की जो स्टोरीज होती हैं उसको, क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन गांव से, छोटे कस्बों से आती है, बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की उतनी फैसिलिटीज नहीं है, और वो बच्चा जब आईएएस क्लियर कर लेता है, या वो बच्चा जब आईआईटी में निकलता है, एम्स में निकलता है, या कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करता है, तो मतलब आज मैं सोचती हूँ, आप सोचिए पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, वो जिंदगी लाइव में उस समय आए थे जब पेटीएम शुरू नहीं हुआ था, उनकी कंपनी 197 थी। सो वी हैव इंटरव्यूड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। और आज मुझे कितनी बार ऐसा होता है कि मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं तो कोई ब्यूरोक्रेट मुझे कहता है कि हम तो जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपका शो देखकर इंस्पायर होते थे। सो दैट्स बीन माय जर्नी इन शॉर्ट। उसके बाद न्यूज में फिर बहुत सारे चेंजेस आए। प्रोग्रामिंग की जगह न्यूज चैनलों में आपको पता ही है कम से कम हो गई, आजकल चीखने चिल्लाने का जमाना हो गया है, तो हमें लगा कि क्या किया जाए। फिर मुझे बहुत सारी जगहों से फीलर्स आए कि डिजिटल हो गया है सब कुछ, कम्युनिकेशन। आज अब देखिए हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे कई लोगों ने ये आइडिया दिया कि मुझे अपना शो वापस यूट्यूब पर या किसी भी डिजिटल मीडियम पे शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मतलब एक होता है ना कि रिटेंशन किसी शो का, मुझे आज तक कहीं मैं बाहर जाऊं या फेसबुक पर आप कभी देखिए, हर कोई मैम जिंदगी लाइव लोगों को याद है। मैं गुजरात में दो शोज आई थिंक मैंने बनाया। हम एक बार अंजार आए थे भूकंप के 10 साल बाद 2011 में, वहां उन पेरेंट्स का इंटरव्यू किया था हमने अंजार में, वहीं उसी स्कूल में बैठकर जहाँ वो हादसा हुआ था। हमने सरोगेसी वाली को, डॉक्टर क्या नाम है उनका इंटरव्यू किया था।
तो बहुत सारे एपिसोड्स किए। फिर जब हमें बार बार ये फीलर आता रहा कि ऐसा शो की वापस जरूरत है, तो हमने फाइनली 2 साल पहले यूट्यूब पर जिंदगी विद ऋचा नाम से ये शो शुरू किया। अभी 2 साल से मैं उसका कर रही हूँ, 4 सीजन हमारे हो चुके हैं। और 2014 में मुझे बिग एफएम से, तो कभी रेडियो नहीं किया था, रेडियो इनफैक्ट करते करते छोड़ दिया था। जब मैं जी में मेरी जॉब लगी थी तो उस समय मैं रेडियो पे ऑन एयर जाने वाली थी एफएम रेनबो पर, और जी से कॉल आ गया तो मैंने एफएम छोड़ा। बट आई थिंक वो, आप कहेंगे मैं बार बार डेस्टिनी की बात करती हूँ, लेकिन आई थिंक वो लाइफ हैज टू कम फुल सर्कल। तो जो रेडियो मैंने तब छोड़ा वो 14 में मेरी जिंदगी में वापस आया, और मुझे बिग एफएम ने अप्रोच किया कि आप, तो मैंने 2 साल तो उनका मॉर्निंग शो, पूरा ब्रेकफास्ट शो दिल्ली में एंकर किया। अभी मैं एक वीकेंड शो करती हूँ, जो अगर अहमदाबाद में बिग एफएम आता होगा तो वहां भी, जितने भी हमारे आई थिंक 40-45 हिंदी स्पीकिंग स्टेशन हैं, सब जगह मेरा शो आता है। उसमें हम लोग जेन्युइन सोशल वर्कर्स जो हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, अपना डॉक्टर इंजीनियर सब लोग, लेकिन कोई कुछ कर रहा है, कोई झुग्गियों में जाके बच्चों को पढ़ा रहा है या कुछ भी, व्हाटएवर, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, ऐसे लोगों को हम इंटरव्यू करते हैं और उनको हम बिग हीरोज कहते हैं। So that's my professional journey in short. अब थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप वाली रोल में आई हूँ, क्योंकि अब क्या हुआ है, पहले अपनी तनख्वाह लेके घर आ गए काम करके, अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ कैसी होती है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले फेसबुक पर एक स्टेटस लिखा कि पहले जब चैनल्स में, जब मंदी का दौर आता था और ये होता था चैनल्स में लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, तो अपनी नौकरी बचने का डर होता था कि यार अब वो रिसेशन का टाइम आ गया है, अब लोग निकाले जाएंगे, अपनी नौकरी कैसे बचेगी। अब पहली बार जिंदगी में ये एहसास हो रहा है कि जो 4 या 5 लोगों की टीम है, उनकी तनख्वाह कैसे दूंगी लॉकडाउन के बाद। आई होप द शो कंटिन्यूज। तो मुझे आई थिंक वो पहली बार आई एम लिविंग दैट लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, जहाँ क्रिएटिविटी के साथ, मतलब रोज हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि भाई अब घर पर बैठे हैं, कुछ कंटेंट, तो कंटेंट बनाना है, ये भी सोचना है, और ये भी सोचना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो विल आई बी एबल टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, जहाँ अच्छे बड़े बड़े नेटवर्क सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, लोग नौकरियां, जर्नलिस्ट के तो हम लोग सुन रहे हैं नौकरियां जानी शुरू हो गई हैं। सो लेट्स सी व्हाट लाइज अहेड, वी डोंट नो, but this is my journey in short. Thank you, Richa ji. It was really nice and कुछ चीजें जैसे आपने बोला कि हमने shows किए वगैरह. So can we know the backside of the story, how the show runs and how things goes on? Because we as a viewer never get a chance to know that. जी, मैं आपको थोड़ा सा न्यूज का भी इनफैक्ट बता देती हूँ। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो कंप्यूटर में एक इनपुट आउट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट होती है, इसी तरह से अब एक न्यूज चैनल का सिस्टम होता है। सो देयर इज एन इनपुट डिपार्टमेंट, इनपुट होता है, उसमें दो लोग आते हैं। उसमें एक तो रिपोर्टर आता है जिसको आप टीवी पे फील्ड में देखते हो, तो फील्ड का जो रिपोर्टर होता है वो इनपुट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, और एक हमारी हर न्यूज चैनल में एक डेस्क होती है जिसको कहते हैं असाइनमेंट डेस्क। तो जैसे आप लोग अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद में कुछ खबर आई, सडनली एक ब्लास्ट हुआ है, कुछ भी हुआ, तो जो अहमदाबाद का रिपोर्टर है वो ऐसे किसी को भी रैंडम कॉल नहीं करेगा, वो असाइनमेंट को कॉल करेगा। वो असाइनमेंट को कहेगा कि ये खबर है, उससे पूछा जाएगा वेरीफाइड है या अफवाह है, वेरीफाई करो। नॉर्मली जो हम लोगों का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, अब आजकल काफी सारी चीजें से हो जाती हैं फेक एंड ऑल, तो वो रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी पे भी होगा। फिर उससे कहा जाएगा कि अच्छा कौन मिलेगा इस समय, क्या अहमदाबाद के ये पुलिस चीफ हमसे बात करेंगे, ये करेंगे। तो उतनी देर में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं डेस्क, आउटपुट डेस्क, उस तक ये खबर असाइनमेंट पहुंचाएगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, अहमदाबाद से खबर आई है, जो हमारा रिपोर्टर है वो इन लोगों को लाइन अप कर रहा है कि होम सेक्रेटरी मिल जाएंगे या जो भी मिल जाएगा, मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे पुलिस वाले, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। बाय दैट टाइम द प्रोसेसिंग जो आउटपुट डेस्क है वो खबर लिख रही होगी, और जो फाइनल आउटपुट है जो एंकर को टीवी पे देख रहे हैं उसके टेलीप्रॉम्प्टर पर स्टूडियो में जा रही होगी वो लिखी हुई, और उसके कान में उसको बताया जा रहा होगा कि जो रेगुलर न्यूज है उसको रोको, ब्रेकिंग न्यूज ये आई है। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप लोगों को याद हो 2005 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, पहाड़गंज में हुआ था, फिर एक सरोजनी नगर में 3-4 ब्लास्ट। मैं उस दिन मैं एंकरिंग कर रही थी और मेरी एंकरिंग खत्म होने वाली थी, तो जैसे 6 बजे मेरी बुलेटिन खत्म होनी थी, करीब 5:40 पे खबर आई कि एक कुछ विस्फोट हुआ है। एक फर्क जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उस जमाने की जर्नलिज्म में, एंकरिंग में, सब चीजों में और आज में बहुत बड़ा फर्क आया है। हमारे टाइम में एज एन एंकर ये होता था कि चिल्लाना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लोगों को शांत करना है कि लोग घबराए नहीं। अब वो आज उल्टा हो गया, आजकल लोग इतना चिल्लाते हैं ऐसा लगता है वो बॉम्ब ब्लास्ट स्टूडियो में ही हो गया है। सो अब आप सोचिए, जहां मेरी बुलेटिन खत्म होने वाली थी मैंने रात 9 बजे तक की, क्योंकि फिर एंकर चेंज नहीं करते, क्योंकि वो एंकर के पास एक खबर होता है ना, एक फ्लो है, अब बीच में आप चेंज करोगे अगला आएगा, तो लगातार ये अब मुझे बोलना है पहाड़गंज। अब फिर मैं पहाड़गंज के बारे में बता रही हूँ लोगों को कि कैसा एरिया है, सकरी गलियां हैं, ऐसा है। दूसरा, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, हो सकता है किसी पटाखे की दुकान पे आग लगी हो,
तो हम लोग जब तक खबर वेरीफाई नहीं होती थी हम बोलते नहीं थे। तो मैं बार बार अपने व्यूअर्स से कह रही थी कि आप लोग घबराएं नहीं, आपका कोई अगर बाजार में गया है तो उसको वापस घर बुला ले, घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल एंकर ज्यादा घबरा जाते हैं पहले। तो ऐसे करते करते मैंने 4-5 घंटे एंकरिंग की थी। सो दिस इज द बेसिकली द फ्लो कि इनपुट से खबर आके। अच्छा, अब मैं अगर जिंदगी लाइफ की आप बात करूं या जिंदगी विद ऋचा जो अभी हम कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो होना होता है वो होता है हमारी रिसर्च। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि पश्चिम बंगाल के गांव में एक आदमी ये काम कर रहा है। सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव। हम, क्योंकि ये खबरें हमें आजकल रेगुलर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती, तो हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। और फिर उसके बाद हमारी एक टीम होती है जो उन लोगों को कांटेक्ट, फिर उनका नंबर ढूंढो। तो चूंकि एक एडवांटेज मेरे पास है, न्यूज चैनल्स में इतने साल काम किया है, तो किसी ना किसी से हम पहुंच के मतलब पहुंच ही जाते हैं वहां उस सोर्स तक जहाँ हम नंबर, फिर हम लाइन अप करते हैं, फिर हम शूट, पूरा प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है कि हम उस पर्सन को दिल्ली बुलाएंगे या हम उसके पास जाकर शूट करेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अभी का बताती हूँ। मुझे सीजन 4 था ना, हाँ 4 लॉन्च करना था। आई थिंक नवरात्रा के टाइम हम लोग शायद दशहरे के टाइम लॉन्च करने वाले थे। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था अनयूजुअल स्टोरी ढूंढते हैं, कोई कोई अनोखी स्टोरी। अब आप सोचिए, पता नहीं क्या था ये। मैंने अपनी रिसर्चर से कहा कि ढूंढो कि पूरे देश में कहीं तो एक रामलीला होगी जो औरतें या लड़कियां करती होंगी। हम आदमियों की तो देखिए कि आदमी भी सीता बन रहा है, कहीं तो। अब वो सोचिए लगी हुई है रिसर्च, उसने 2 राउंड ऑफ रिसर्च कर लिया, बोली मैम कहीं है। और पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक जिद आ गई थी। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इतना बड़ा देश है, कोई तो होगी। इतनी सी एक कहानी उसको मिली इंटरनेट पे, इतनी सा एक पैराग्राफ कि रायपुर के पास एक कोई जिला है, वहां एक गांव है जहां बच्चियां रामलीला करती हैं। चांस की बात है, मैं एक IAS ऑफिसर को जानती थी, उनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं ये स्टोरी कवर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा रुको मैं पता करता हूँ, वहां के कलेक्टर को बोलता हूँ। वहां की कलेक्टर बोली अरे ये कहानी तो मुझे ही नहीं पता, थैंक यू आपने बताया, अब हम किसी को उस गाँव में भेजेंगे, पता करेंगे। चलिए भाई, कोई गया, वहां से तहसीलदार को गाँव भेजा गया। तो ये पता चला कि अभी तक रामलीला हो रही थी, 5 साल से बच्चियां कर रही थी, इस साल नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि गांव की बच्चियां हैं, रिसोर्सेज नहीं है, कपड़ों वपड़ों के पैसे ऐसे उतने होते नहीं है गांव में। तो अब रामलीला बेचारे दुखी होकर वो बंद करने वाले थे। लेकिन अब सोचिए, कलेक्टर ने मुझे कहा कि मैं अगर आप कवर करने आ रही हैं तो हमारा प्रशासन, क्योंकि हमारे लिए बड़ी बात है, वी विल अरेंज फॉर द क्लोथ्स एंड ऑल, खर्चा पूरा प्रशासन उठाएगा। आप सोचिए गांव के बच्चों को इससे और क्या चाहिए। सो फाइनली दिस हैपेंड, मैं वहां गई, हमने उन बच्चों के साथ शूट किया। तो उस बच्ची ने एक ने कहा कि मैम ये खत्म हो जाती है रामलीला, बहुत सालों से इस गांव में 70 साल से हो रही थी, पहले आदमी करते थे, अब हम कर रहे हैं 5 साल से, आपने हमारा जीर्णोद्धार कर दिया। मैंने कहा बेटा मैंने नहीं किया, कहीं कोई एक एनर्जी है जो मेरे दिमाग में ये बार बार डाल रही थी कि ढूंढो ढूंढो, नहीं तो आई कुड हैव गिवन अप फर्स्ट, आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रिसर्च। मैं आपसे कोई कहेगा नहीं मिल रहा, आप कहेंगे ठीक है छोड़ो। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे साथ इस बार हुई। और उन बच्चियों ने लास्ट में बड़ी अच्छी बाइट दी है, वो एपिसोड में अगर आप लोग ढूंढे उसमें, रामलीला, हमने उसको क्या नाम दिया है, बेटियों की रामलीला। उन्होंने लास्ट में पता है क्या कहा है कि हम एक दिन मोदी जी के सामने रामलीला करना चाहते हैं, हम रामलीला मैदान में अपना रामलीला करना चाहते हैं, वो भी मोदी जी के सामने। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई तुम लोग की इतनी शिद्दत और इतना डिजायर है, यू नेवर नो, इट माइट बी गेट फुलफिल्ड। सो दैट्स हाउ आवर होल। फिर हम वापस आते हैं शूट लेकर, यहाँ पर दिल्ली में हमारे एक एडिटर हैं, उसको पूरा एडिट करते हैं, और पूरे एडिट पर मैं उनके साथ बैठती हूँ। तो मैं मतलब एपिसोड बनने के पूरा शुरू से लेके A to Z आई एम इन्वॉल्व विद द होल प्रोसेस। आई राइट माय ओन स्क्रिप्ट, सब कुछ मैं करती हूँ। What is the time process for one, like जो आपने ये बताया, ये पूरा करीबन कितने दिन का प्रोसेस हुआ for getting one shoot done? एक्चुअली जब जिंदगी लाइव IBN 7 पे आता था तो एक सीजन 26 एपिसोड्स का होता था, तो ऑलमोस्ट वो 6 महीने का हो जाते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अगले 6 महीने वो पूरे 26 एपिसोड्स रिपीट करते थे, एंड वाइल हम लोग अगले एपिसोड्स की तैयारी शुरू कर देते थे। तो उसमें भी ये होता था, हमें अपनी स्टोरीज सारी जो हमारी रिसर्च की टीम होती थी वो बॉस के सामने प्रेजेंट करती थी। बहुत उसके ऊपर वो होता था बहस ये वो, कि मतलब पूरे मेरिट्स देख के फिर हम वो शूटिंग करते थे। 10-12 एपिसोड जब हम बैंक कर लेते थे और 3-4 एडिट हो जाते थे, तब हम ऑन एयर करते थे। अब क्या हुआ है, चूंकि हमारा सिस्टम छोटा हो गया है, सेटअप सब छोटा है, मुझे ही सारा संभालना है, तो हम लोग, हमारा एक सीजन होता है 13 एपिसोड का। स्लीपवेल मैट्रेस जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा, उसकी जो CSR विंग है, स्लीपवेल फाउंडेशन, वो चूंकि उनका CSR का ऑब्जेक्टिव होता है इमोशनल वेलनेस, तो उनको हमारे एपिसोड इमोशनल वेलनेस से रिलेटेड लगते हैं, तो दे आर आवर स्पॉन्सर्स। अब हम लोग 13 एपिसोड का बनाते हैं, तो मोटा मोटा 3-3.5 महीने हमारा होता है। सो अब जैसे अभी हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है कि लॉकडाउन के दौरान हम स्टोरीज ढूंढ के रखें। वंस द लॉकडाउन फिनिशेस, हम स्पॉन्सर को स्टोरीज बताते हैं, ऑल्दो थैंकफुली मिनिमम इंटरफेरेंस है उनकी, तो जो स्टोरीज हम उन्हें उसमें कुछ सेलिब्रिटी स्टोरीज होती हैं,
पिछले सीजन में हमने दीपक डोबरियाल और कुमार विश्वास का इंटरव्यू किया। तो मेरा हमेशा जिंदगी लाइव में भी मकसद ये रहा, अभी भी ये रहता है कि हम अगर कोई सेलिब्रिटी भी ले तो ऐसा सेलिब्रिटी लें जिसकी जिंदगी से हमारा आपको सीख सकें, देश का आम आदमी भी कुछ सीख सके। भाई बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून और कुछ कर लिया तो मतलब कौन सी बड़ी बात है टाइप्स। तो दीपक डोबरियाल कैसे उत्तराखंड के रहने वाले, दिल्ली से कैसे स्ट्रगल करने गए, जो भी हो, हमने जिंदगी लाइव में मनोज वाजपेयी, माधवन, आशुतोष राणा, बमन ईरानी, राजू ईरानी, तो आप कोई भी अगर हमारा सेलिब्रिटी भी देखें तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि ये इसको क्यों लिया इंटरव्यू में। कुमार विश्वास का भी एपिसोड हमारा बहुत हिट हुआ, बहुत हिट, बिकॉज द काइंड ऑफ स्ट्रगल ही स्पोक अबाउट। तो वो अभी जैसे हमारा वो चल रहा है, फिर हम शूटिंग शुरू कर देते हैं, 4-5 शूट हो जाएं, कम से कम 2 एपिसोड एडिट हो जाएं, फिर हम ऑन एयर अपलोड करना शुरू कर देते हैं और हमारा वीकली अपलोड होता है। सो एवरी फ्राइडे 6 PM हमारा एक फ्रेश एपिसोड अपलोड होता है। कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपको, यानी पूरी इतनी जर्नी में जो आपको यादगार रहा हो, ऐसा कोई एक इंटरव्यू जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? एक्चुअली इंटरव्यूज बहुत अलग अलग ढंग से होता है। कई सारे लोग, बहुत नॉर्मल लोग आपको बहुत सिखा के जाते हैं, बहुत आम लोग। एक लेडी को मैं हमेशा कोट करती हूँ, हमने एक एपिसोड किया था अनयूजुअल प्रोफेशन विमेन का, कुछ इस तरह का टॉपिक था। और आप सोचिए, मैं आपसे आज कम से कम 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो वो एक चंडीगढ़ की महिला बाउंसर थी, लंबी चौड़ी। अब बाउंसर की नौकरी बेचारी कहाँ होगी, लाउंज बार में, डिस्क में, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कैसे कर, तो उसने पूरा अपना जब शेड्यूल बताया कि मैं बच्चों को सुबह खाना वाना दे के ये करके फिर रात में अपनी ड्यूटी पे निकलती हूँ, सुबह 5 बजे अपनी ड्यूटी से जब लौटती हूँ, उसके बाद 6-7 बजे बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो वो लेडी लिटरली दिन में 2 या 3 घंटे सोती है। और फिर मैंने उससे कुछ ऐसा पूछा, मैंने कहा रात में जब तुम निकलती हो तो समाज, आसपास, कैरेक्टर असैसिनेशन, तो उसने कहा मैम बहुत होता है, लोग बहुत गंदी गंदी बातें मेरे लिए करते हैं। तो उसने एक बात कही, सुदर्शन, उसने कहा मैम किसी को ना मेरे घर में राशन नहीं रख देना है, किसी को मेरे बच्चे को पढ़ाना नहीं है, वो मुझे करना है। तो मैं सही कर रही हूँ या गलत, ही मुझे पता है। सो ऐसे क्या होता है, मैं ना कोई एक इंटरव्यू इस तरह से पिन पॉइंट नहीं, बिकॉज मेरी ओवरऑल जर्नी में जिंदगी लाइफ हैज चेंज्ड मी अ लॉट एज अ पर्सन, बहुत। आई हैव स्टॉप्ड कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मैंने इतना दुख देख लिया। 26/11 का जब अटैक हुआ, हमने उसके विक्टिम्स का 3 एपिसोड किए, फ्रॉम हीरोज टू विक्टिम्स। संदीप उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स, विजय सालस्कर की वाइफ, तुकाराम ओमले की बेटी, जिन लोगों ने जान गंवाई, ऐसे लोगों के मैंने। सो मेरे लिए ना जिंदगी के मायने बदल गए। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू उस दूसरे तरीके से कहेंगे तो मैं कहूंगी 2004 में, 4 मार्च 2004 में जब मैंने अमिताभ बच्चन जी का पहली बार इंटरव्यू किया, वो मेरे लिए एक आई थिंक मेरी जिंदगी का, क्योंकि दैट वाज अ ड्रीम दैट आई लिव्ड विद। वो मैंने बहुत इंटरव्यूज में अपने कहा हुआ है कि मेरा सपना था कि मैं जिस दिन अमिताभ बच्चन से मिलूं उस दिन ऐसे मिलूं कि 1-on-1 मिलूं, मतलब भीड़ में नहीं। और मैं गजब बचपन से, हम सभी लोग, हमारी जनरेशन में आई थिंक कोई शायद ही होगा जो कहेगा अमिताभ बच्चन के फैन नहीं थे। तो दिल्ली में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कहीं से जा रही थी, तो वहां बहुत भीड़ लगी थी, 96 की ही बात है, भीड़ लगी थी। मैंने ऐसे पूछा भैया यहाँ क्या आ रहा है, उन्होंने कहा बच्चन साहब आ रहे हैं। तो मैं भी खड़ी हो गई, बच्चन साहब, मैं झांसी की लड़की, अब इतना तो। और तब तक कोई जर्नलिज्म से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं स्पिक मैके के ऑफिस में काम करती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर से, मैंने कहा नहीं, ऐसे भीड़ में खड़े होकर थोड़ी देखना है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन से जिस दिन मिलेंगे उस दिन ऐसे मिलेंगे कि हम अपना नाम बताएंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन होगा। आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मतलब द बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सपना था ये। बट ये एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पूरा हुआ। 4 मार्च 2004 को मनाली में मैंने उनका इंटरव्यू किया। और जैसा मैंने पंडित रविशंकर कहे और मैंने अमिताभ बच्चन, मैं इन दो, अब तो खैर फिर केबीसी की वजह से बच्चन सर से बहुत इंटरेक्शन होता रहता है। मैं सुदर्शनी एक बात बोलूंगी, बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं होती कि बड़प्पन होता क्या है। और बड़प्पन पैसे से नहीं आता, पैसे से या आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट से, या आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैं कोई जर्नलिस्ट, कोई कुछ भी, हम बहुत बड़े हो सकते हैं, उससे बड़प्पन नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें पंडित रविशंकर से और अमिताभ बच्चन जी से सीखी। और जो सबसे बड़ी चीज सीखी है वो ये कि मैंने इन दोनों को कभी लेट होते नहीं देखा, कहीं, कभी नहीं। केबीसी के सेट पे कभी बच्चन साहब लेट नहीं होते, कभी नहीं। एक आध बार अगर कभी हुए हों तो बहुत वैलिड कोई रीजन होता है कि उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई हो, और वो आके पहली चीज जो, मतलब इवन बिफोर केबीसी, आई एम टेलिंग यू, एक बार ऐसा हुआ था, वो IBN 7 आने वाले थे और आशुतोष हमारे बॉस होते थे, आशुतोष और मुझे उनका इंटरव्यू करना था। हम गेट पे खड़े हुए थे एंड बच्चन साहब वाज ओनली लेट बाय आई थिंक ऑलमोस्ट ओनली 10 मिनट्स। बट वो गाड़ी से उतर के पहली चीज जो उन्होंने आशुतोष से कही वो थी, आई एम सॉरी आई एम लेट। मतलब मुझे लगा, ओ माय गॉड,
हम देखते हैं कि फिल्म स्टार्स 2-2 घंटे लेट आ रहे हैं, उनके अंदर कोई गिल्ट विल्ट तो दूर की बात है, मतलब और एटीट्यूड होता है। ये चीज पंडित रविशंकर में भी थी। तो वो मेरे लिए सबसे खास इंटरव्यू था, जिस तरह से, मतलब मैं कोई उस जमाने की बरखा दत्त नहीं थी, बिल्कुल बच्ची सी रिपोर्टर एक थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। और कैसे उन्होंने, मतलब वो समझ रहे थे कि नर्वस हो रही है, कैसे मुझे उन्होंने पहले इंटरव्यू के पहले कंफर्ट किया, आप ये फ्लेवर्ड वाटर पियेंगी, ये कोई लेकर आया है, अच्छा आप कहाँ की रहने वाली हैं, अच्छा झांसी की हैं, अरे वाह झांसी ने तो अभी यूनिवर्सिटी ने हमें डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल। उसके बाद उन्होंने कम से कम, ये तो मुझे 1.5-2 घंटा इंटरव्यू दिया, 1-1.5 घंटा मारा, और मैं इतनी घबराई हुई, नर्वस। लेकिन उन्होंने एक जगह भी कि मैं अमिताभ बच्चन, जो आजकल बहुत फिल्म स्टार्स जिनकी 4 फिल्में हिट हो जाती हैं, जो हो जाते हैं ना, वो चीज मैं बार बार ये कहूंगी कि वो पंडित रविशंकर हो या अमिताभ बच्चन, मतलब उनको देख के लगता है ये बड़प्पन है। वो बड़प्पन नहीं है जो हम आजकल सितारों को, आप ऑडी मर्सिडीज से उतर के एटीट्यूड झाड़ना इज नॉट। इसलिए ना मुझे आजकल कई बहुत सारे बड़े लोग बड़े लगते नहीं, क्योंकि मैंने इन दो बहुत जेन्युइनली बड़े लोगों को इतने करीब से देखा है ना, उनसे मतलब मैंने पर्सनली बहुत सीखने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट इंटरव्यू इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला आपके थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ सो 20 इयर्स। वी आर एबल टू कैप्चर द मोस्ट। वेरी डिसिप्लिन्ड। जैसे मैंने आपको बोला बच्चन साहब का टाइम का बोला, मैं एक और इंसिडेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, कुछ चीजें हमें जिंदगी में बड़ा क्या बनाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। एक कोई प्रोग्राम था जहाँ पंडित रविशंकर का शायद सम्मान होना था, मुझे एग्जैक्टली याद है, हाँ सम्मान ही। तो वो उनकी वाइफ और मैं, हम तीनों गए हुए थे। सम्मान हो गया, उसके बाद गुरुजी बैठे हुए थे, मैं उनको गुरुजी बोलती थी। तो स्टेज पे कुछ आर्टिस्ट परफॉर्म करने आए, तो एक कोई लड़का आया जो बहुत बुरा गा रहा था, आई एम सॉरी टू से, बट, और मुझे कोई म्यूजिक की बहुत ऐसी समझ नहीं है, मुझे बस इतना समझ में आता है कि बेसुरा है। और जब मुझे प्रॉब्लम होने लगी तो मुझे लगा कि मैं तो आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। आप सोचिए पंडित रविशंकर के सामने कोई बेसुरा गा रहा हो, मतलब वो तो शायद सपने में भी बेसुरे नहीं होंगे, नींद में भी। तो मैंने ना धीरे से उनसे कहा, मैंने कहा गुरुजी सम्मान हो गया है, चलना हो तो निकल सकते हैं यहाँ से। मुझे लगा यार इनके ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है एट द एज ऑफ 88, इनको इतना बेसुरा गाना। यू नो व्हाट ही सेड, ही टॉट मी अ लेसन फॉर लाइफ। बेटा, जब कलाकार मंच पे होता है तो उठ के नहीं जाते। मुझे ना एक थप्पड़ पड़ा, मुझे लिटरली एक थप्पड़ पड़ा कि तुम कौन हो। वो आदमी कह रहा है कि कलाकार का सम्मान, आप सोचिए, उसको जरूरत नहीं है वो सम्मान देने की किसी को, वो उठ के चली भी जाते तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ बोल जाता। और मैं इतने क्लासिकल कॉन्सर्ट में देखती हूँ, लोग घुस रहे हैं, बीच में से आ रहे हैं, चिप्स का पैकेट लेके जा रहे हैं, चीफ गेस्ट देर से आ रहा है, और वहां पंडित रविशंकर एक बेसुरे आर्टिस्ट को भी कह रहा है कलाकार मंच पर है, उठकर नहीं जाएंगे हम। these are little things that you learn from people. वही चीज मैं जब बच्चन साहब को देखती हूँ, कैसे वो कंटेस्टेंट्स के साथ बात करते हैं, कितना उन्हें वैल्यू करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, तो मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज इन लोगों से सीखी कि आपका बड़प्पन इसमें है कि आप दूसरे को सम्मान दें, ना कि बस अपने सम्मान में के लिए सारे जिंदगी खपाते रहे। बहुत अच्छा लगा, हमें ये पूरी जानकारी प्राप्त हो। ज्यादा बोलती हूँ, बड़बड़, सॉरी। We really enjoyed, and एक चीज और, जैसे people want to know how आप कैसे KBC के साथ associated थे, how was that journey of yours? एक्चुअली वो मेरा 2010 से आई थिंक इन लोगों ने एक्सपर्ट राउंड शुरू किया था। वो तो आई थिंक उनका वो इंटरनेशनल ये लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो 10 में तो मुझे याद है मैं नहीं थी, 11 में बस अचानक ही एक मैसेज आया कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम KBC टीम एंड वी वांट टू टॉक टू यू। तो एक्चुअली हो ही रहा था कि एक्सपर्ट्स में ज्यादातर ये लोग जर्नलिस्ट को ही बुलाते हैं, क्योंकि कई बार होता है भाई करंट अफेयर्स के लिए ही कंटेस्टेंट आता है आपके पास। तो मेरे पास फोन आया कि मैम आपको पता होगा कि हम पिछले 1 साल से हमने एक्सपर्ट राउंड शुरू किया, हम चाहते हैं आप एक्सपर्ट बनकर आए। तो उस समय ये होता था कि मुंबई जाना पड़ता था आपको, और एक दिन में 2 एपिसोड शूट होते थे। अब हम लोग वीडियो कॉल पर रहते 2 साल से, तो बस वो तो बस इट जस्ट हैपेंड, KBC कॉल भी। बट हाँ, उसके बाद ये बहुत मजाक शुरू हो गया था कि बच्चन सर का इसका रैपो बहुत अच्छा है, इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, द चैनल आल्सो फील्स कि बच्चन सर इनसे रिचा से अच्छे से बात करते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। कितने साल हो गए, 9 साल हो गए आई बीन डूइंग दिस। 1-8 साल बीच में ऐसा हुआ था कि किसी फॉर्मेट में एक्सपर्ट राउंड नहीं था। उस साल के अलावा मैं हर साल रही हूँ। You have wonderful comments in the chat box. If you can just see people अच्छा, मैं just liking what and praising the things you are saying. अच्छा, your best memory of जिंदगी लाइफ any particular episode कह रहे हैं लोग। Oh my God, ओजस इतना डिफिकल्ट सवाल है ना। आप सोचो 26 एपिसोड इंटू 6 करो, आप कितना हुआ?
26 into 6. 120 and 36, 156. 156 into अगर आप एवरेज 5 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने लोगों के तो मैंने इंटरव्यू सिर्फ जिंदगी लाइफ में किए हैं. बट वही जैसे मैंने कहा ना, हर किसी से अलग अलग अलग. एक नीलम कटारा, आई डोंट नो अगर आप लोगों को नितिश कटारा मर्डर केस याद हो, बहुत फेमस रहा. और नीलम जी, उसकी माँ नितिश की, बहुत लंबा बैटल उनका चला क्योंकि पावरफुल फैमिली थी, पॉलिटिशियन फैमिली थी. तो उनसे मैंने नीलम जी से सिर्फ एक सवाल पूछा कि नीलम जी, कभी आप ये कहती हैं वाई मी, कि आपके एक बेटे का पहले मर्डर हुआ, उसके दुख में 1-1.5 साल में हस्बैंड की डेथ हो गई, इतना दुख अचानक आ गया, 2 बेटों में से एक बेटा बचा और आप अकेली बची है. She said a very beautiful thing. She said जब 50 साल मेरी जिंदगी के बहुत खुशियां भरे थे, जब 2 मेरे बेटे, लाडले बेटे मुझ पे जान छिड़कते थे, मेरे पति मुझ पे जान छिड़कते थे, तब तो मैंने भगवान से शिकायत नहीं की कि वाई मी, इतनी खुशियां मुझे ही क्यों मिल रही हैं. तो अब जब दुख आया है तो मैं वाई मी क्यों बोलूं. एंड आई थिंक दैट वाज वन डे इन माय लाइफ. आफ्टर दैट मैंने वाई मी अपनी लाइफ में नहीं बोला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मेरे जिंदगी लाइफ के हर गेस्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. तो अभी एसिड अटैक में हुआ था, एसिड अटैक की एक बच्ची, उसकी लाइफ तो बहुत वो थी. उसके साथ क्या हुआ था, वो न्यूबॉर्न थी, अपनी माँ की गोदी में थी और पिता ने माँ पे एसिड फेंका, तेजाब फेंका, तो माँ की डेथ हो गई, पिता जेल चला गया. और ये बच्ची का तो चेहरा, अब आप सोचिए न्यूबॉर्न बच्चे पे, 1-2 महीने की थी शायद, उसका तो चेहरा, मतलब उसको तो कई बार हम देखते हैं ना कि ये लक्ष्मी ऐसी दिखती थी, अब ऐसी हो गई. उस बच्ची को तो पता ही नहीं है कि भगवान ने उसको किस शक्ल के साथ पैदा किया था. बहुत साल वो पहले हॉस्पिटल में रही, फिर किसी अनाथ आश्रम में दे दी गई, वैसे ही पली बड़ी. अगेन आप लोग बिजनेस फील्ड से, मैं आपको एक ये जरूर बताना, उसके साथ क्या हुआ, कहीं उसने जॉब करी, अच्छे से पढ़ी लिखी. एक बार एचआर ने उसको बुला के कहा कि ऑफिस के एम्प्लॉयज में हमसे शिकायत कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत टेंशन है, तो वो ऑफिस आके एक एसिड अटैक सर्वाइवर का चेहरा नहीं देखना चाहते. क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी इनह्यूमैनिटी भी हम सबके बीच होती है कि हम ये कहें कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत दिक्कतें हैं, ऑफिस आओ तो एक एसिड अटैक की लड़की चेहरा देखना पड़ता है. इसलिए उस एचआर ने उस लड़की को निकाल दिया नौकरी से. मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने उसकी बात सुनी. मतलब मैं कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं. तो फिर और उसने कुछ चीजें बोली कि हाँ, मेट्रो में जाती हूँ तो लोग ऐसे मुंह फेर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है. फिर मैंने कहा तुम्हें लगता होगा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, ये ऐसे कुछ दुखी. बोली मैम, ये सब छोटी छोटी बातों पे दुखी होंगे तो फिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे. एंड आई वाज लाइक व्हाट. मतलब आप सोचिए हम लोग किन चीजों के लिए दुखी होते हैं. ये नहीं हुआ, बिजनेस में नुकसान हो गया, इस साल इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगा, ये नहीं हुआ. वो जिसका चेहरा जल गया है, जो जले हुए चेहरे से ही पली बड़ी है, जिसका कोई नहीं है, ना पिता, ना माँ, ना ननिहाल, ना ददियाल, उसको लोग बेइज्जत करते हैं, उसकी नौकरी चली जाती है और वो कहती है मैम छोटी छोटी चीजों का टेंशन नहीं लेना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए. अगेन शी टॉट मी अ लेसन फॉर लाइफ. जैसे ओजस मैं बता नहीं पाऊंगी, कोई बहुत मुश्किल है. I'm sure your journey, हमें शायद पूरा जानना हो तो शायद 2-4 दिन बैठना पड़ेगा. So now I will be taking few questions from the participants or what are there. So there is a Dhruvil Patel asking, I would like to know about her throwback memories with an Indian politician leader apart from Narendra Modi. Indian politician? मैंने एक्चुअली हार्डकोर पॉलिटिकल मैंने एंकरिंग तो की है. कुछ इंसिडेंट्स हैं, बट मैं यहाँ पे वो नेताओं के नाम नहीं लेना चाहूंगी, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है. एक बार हुआ था कि कहीं एंकरिंग में फोनो लिया, फिर वहां से रिपोर्टर को फोन किया गया कि मैडम को समझाओ जरा, सवाल थोड़े ढंग से पूछा करें. तो इस तरह की कुछ चीजें हो जाती थी. एक बार एक नेता के बर्थडे पे साड़ियां बट रही थी, फिर वो साड़ियों में स्टैम्पीड हो गया था और बहुत सारी औरतें मर गई थी. तो उस समय मुझे वो नेता लाइन पे दे दिए गए. मुझे सिर्फ फर्क एक आया है नेताओं के साथ या किसी के साथ बात करने में, मुझे लगता है अपना एंकर ज्यादा चीखता है, जबकि हमारे साथ हमेशा ये होता था कि हम नहीं चीखते थे, हम सामने वाले को शायद मजबूर कर देते थे चीखने के लिए, हम जिस तरह से उसको काउंटर करते थे फैक्ट के साथ. तो नेताजी की हालत ये हो गई थी कि वो इतनी बुरी तरह चीख के फिर फाइनली उन्होंने फोन ही काट दिया था कि मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा. बट सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं. आई डोंट, अब इतने सालों बाद अब नाम क्या लेने लोगों के, बट मैंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंकरिंग, जैसे मैंने कहा कि वो एक दौर आया था कि वो सब से सांप बिच्छू चलने लगा था. उसके बाद थैंकफुली जिंदगी लाइव आ गया जिंदगी में, और जिंदगी लाइव में हमने थोड़ा सा एक इंटेंशनल रखा था कि हम नेताओं को नहीं बुलाएंगे. एक नेता हमारे पूरे 6 साल की जिंदगी लाइव में एक पॉलिटिशियन आए हैं, आप सोचिए. वो भी क्योंकि टॉपिक था इंटर रिलीजियस मैरिज, हिंदू मुस्लिम या सिख क्रिश्चियन को शादियां, तो शाहनवाज हुसैन, चूंकि उनकी वाइफ हिंदू है इसलिए शाहनवाज आए थे. आई थिंक अदरवाइज 6 साल में मैंने किसी नेता को जिंदगी लाइफ में नहीं आने दिया. So we've stayed away from that. Thank you.
And there's a question from Pooja Kosti. She wants to know what was the main motivation which kept her going and pushed her to pursue what she wanted. आपको क्या चीज ने एकदम कभी भी हारने नहीं दिया जीवन में, और ऐसे क्या था? वो अभी भी है एक्चुअली. देखिए, अगर आप देखें आज भी मैं अगर किसी न्यूज चैनल में जाके न्यूज पढ़ूं तो आई वुड अर्न 3 or 4 times more than what I'm doing right now. बट 2014 में मैं वापस न्यूज पढ़ने मुझे बुलाया भी गया था. मैंने 1 साल पढ़ी थी कि मुझे समझ में आ गया मैं नहीं पढ़ सकती. तो मेरे साथ एक तो ये बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा मुझे जो काम अच्छा लग रहा है, मैं रात में चैन की नींद सोती हूँ या नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. What kept me going, जिंदगी लाइफ जब शुरू हुआ था तो उसका भी कमेंट मैंने कई जगह शेयर किया है. तो एज आई सेड, वो समय न्यूज का बहुत बुरा दौर था, सेंसिटिव चीजों की बातें. तो मैं पहला एपिसोड एडिट ही कर रही थी. पहला एपिसोड ऐसी महिलाओं के साथ था जिन्होंने शादी के 20-25 साल बाद डिवोर्स लिया हो. अब आप सोचिए 2007 में बड़ा वैसा टॉपिक था. और हमारी पहली गेस्ट आप लोगों को याद होंगे, इंग्लिश में श्रीदेवी की बड़ी बहन बनी थी, सुजाता कुमार. उस समय वो सिर्फ टीवी पे आती थी, इतनी उनकी पहचान नहीं थी. शी वॉज माई फर्स्ट गेस्ट ऑन जिंदगी. मैं एडिटिंग कर रही थी, एक हमारे कोलीग आए, एडिट बे में घुसे, उन्होंने देखा थोड़ा, बोले कौन देखेगा आपका ये शो, ये सब ये रोना गाना कौन देखता है. मैंने उस दिन उनसे कहा, मैंने कहा कोई ना देखे, मुझे कम से कम ये सुकून रहेगा जिंदगी में, मैंने कुछ ढंग का काम किया, ना कि जैसी न्यूज आप लोग दिन भर चलाते हो, कूड़ा चला रहे हो, कम से कम उसका हिस्सा मैं नहीं बनी. मैंने गुस्से में उन्हें से बोल दिया. उसके बाद क्या हुआ, जिंदगी लाइफ जब चलने लगा, उस समय इतना ये सब सोशल मीडिया कम था. जिंदगी लाइफ जो वाइब्रेंस में था, ऑनेस्टली तब ये सब ट्विटर उतना था नहीं, धीरे धीरे आया. मुझे एक लड़की ने मेल लिखी इलाहाबाद से, मुझे आज भी याद, मैं कभी भूलूंगी नहीं उस मेल को. उसने कहा मैं स्लीपिंग पिल्स पर थी, क्योंकि मुझे रोज लगता था मैं आज सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं आज अगर जिंदा हूं तो रिचा और जिंदगी लाइफ की वजह से, क्योंकि मैंने और लोग. तो मुझे उसके बाद ये सिलसिला बहुत कॉमन हो गया. बहुत लोग हमें लिखने लगे कि हमें लगता था हमारा दुख सबसे बड़ा होता है ना, आपको लगता है आपकी जिंदगी में जो परेशानियां वही सबसे ज्यादा है. फिर आप देखते हो एक माँ को जिसका इकलौता बच्चा 26/11 में आतंकवादियों से लड़ता मारा गया, माँ बाप है, और वो माँ बाप कह रहे हैं कि हम रोज सोचते हैं सुसाइड कर लें, कुछ है ही नहीं अब जीने के लिए. आप देखते हो कि किसी माँ लड़की का पिता जिंदा जला दिया गया 84 के दंगों में. जब आप ऐसा कष्ट देखते हो, आप ऑटिस्टिक बच्चे जिन पेरेंट्स के हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स को अल्जाइमर्स हो गया है, जो रोज अपने बच्चे को नहीं पहचानते, तब आपको सीरियसली लगने लगता है यार मैं तो ठीक हूँ, मैं तो काफी ब्लेस्ड हूँ लाइफ में. बहुत सीरियस. और मतलब मेरे पास कितनी मेल्स आज तक ये आते हैं कि यू पुल्ड मी आउट ऑफ डिप्रेशन. सो आई थिंक वो जो एक होप जिंदगी की, आज भी क्या होता है, देखिए अब कोरोना है, आप 2 घंटे टीवी देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा सब खत्म है, कल आप भी नहीं बचेंगे. ठीक है. इस बीच जिंदगी विद रिचा में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं जो किसी को खाना खिला रहा है, किसी की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, किसी को कुछ जानवरों को खाना खिला रहा है इस समय, बिकॉज लॉकडाउन है. आई एम ट्राइंग टू स्टिल ब्रिंग आउट द पॉजिटिव स्टोरीज, क्योंकि वरना तो टीवी तो आपको ये रियलाइज करा देता है आप कल मरने वाले हैं, आप जिएंगे ही नहीं, दुनिया बहुत बुरी है, सब बहुत बुरे हैं, आपके आसपास सब बहुत बुरे हैं. सो आई एम जस्ट दैट क्या बोलते हैं, दैट मिशन ऑफ कीपिंग दैट होप अलाइव, कि नहीं अभी भी अच्छे लोग हैं हमारे आसपास. हाँ, that's kept me going. Very well said. So I will go for the next question. There's from Harshil. How difficult to handle any news which is going to affect any public figure or politician? अब तो कोई रह ही नहीं गया उसके. So हमारे टाइम पे एक हुआ था जिसके लिए हमें बड़ा वो, I was personally very disturbed, क्योंकि उसकी न्यूज मुझसे ही ब्रेक कराई गई थी मैंने, और एक बड़े फिल्म स्टार के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद 2 or 3 of his girlfriends and all, और पुलिस के पास रिकॉर्डिंग थी, और वो हमारे चैनल ने रिलीज करा था. मैं आई थिंक 6 या 7 घंटे उसको एंकरिंग किया था. उसके बाद और भी लोगों का कुछ हुआ, हमारे जानकार लोगों का, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ. तो एक दिन एक हुआ था कि कमेंट मुझे किसी ने कहा कि मैंने अपने ऑफिस में ही जाके कहा, मैंने कहा आप इस आदमी के ऊपर MMS का कुछ इल्जाम लगा रहे हो, आपके हाथ में वो MMS नहीं है, आपको नहीं पता वो MMS एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन आपको एहसास नहीं है कि उस आदमी की 2 जवान बेटियां हैं, घर में टीवी तो हर कोई देखता है. तो मुझे इस चीज की शिकायत बहुत ज्यादा है आज के मीडिया से, कि हम इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कि जो चीज हम तुरंत, और आप, मैं बताऊं, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी वायरल कर देते हो. मैंने आजकल अपनी जिंदगी में उसूल बनाया हुआ है कि मैं कुछ भी व्हाट्सएप पे आएगा उसको फॉरवर्ड नहीं करूंगी. हम ये रियलाइज नहीं कर रहे एज अ सोसाइटी कि हमारा एक छोटा सा एक्शन, आप सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, अभी एक हाल में कहीं घटना हुई, किसी लेडी को शॉपलिफ्टिंग करते पकड़ा गया, फिर उसका पूरा वीडियो वायरल कर दिया गया, ये हुआ वो. मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा प्रॉब्ली शी कुड बी अ क्लेप्टोमेनिया, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, शी हैज टू बी हैंडल्ड लीगली, वो सब ठीक है, बट आपने उसका वीडियो वायरल किया है, उसके घर में बच्चे होंगे. हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हमारा एक एक्शन
वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वो उसका एक आने वाली पीढ़ी पर क्या असर हो सकता है। तो मेरी ना, मैं सुदर्शन कुछ भी करती हूँ, मेरे हमेशा थॉट में ना बच्चे बहुत होते हैं कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो अगर मैं अच्छे शोज बना रही हूँ तो क्या बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। और हम कुछ भी ऐसा ना करें, आप सेलिब्रिटी वगैरह छोड़िए, हम कुछ भी जब दिखा रहे हैं इस तरह की चीज या किसी की भी पर्सनल लाइफ में, इट्स वेरी बैड एंड वी शुड फॉलो सम एटिकेट्स, एथिक्स, जो कि सैडली नहीं हो रहे हैं अभी। हम बहुत ज्यादा फिल्म स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की लाइफ में इंट्रूड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घुस रहे हैं, और कई बार तो मुझे बहुत यूजलेस भी लग रहा है। मतलब अभी हाल में एक चैनल देखा, उसमें एक मतलब सैफ से कहा गया आपका बेटा कहाँ है, फिर सैफ कह रहे हैं कि बेटा पॉटी पर बैठा हुआ है। मतलब आई मीन दिस इज अ नेशनल न्यूज चैनल एंड नेशनल न्यूज एंकर आस्किंग सैफ कि बेटा कहाँ है, बेटे को दिखा दो, बेटा बाय कर दे टीवी पर। मतलब सेलिब्रिटीज की लाइफ में इतने हम ऑब्सेस्ड क्यों हैं, वो भी तो देखिए ना आप। Why are we so obsessed? Is it that important? मेरे लिए हमेशा आम आदमी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। yes, और आपके काम से और जो वे ऑफ नेचर आपने जिस तरह हमको सब समझाया है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, एंड वी कैन सी द चैट बॉक्स विद रोलिंग द कमेंट्स, एवरीबॉडी इज happy the way you are working right now, and the different way of yourself looking to the things is keeping you yourself a Richa Anirudh, I can say. Thank you. Any more questions? We'll just take one more question and then we'll give end to this note. So anyone who would like to put in the chat box, and निशांत का क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। How are you managing your professional life and personal life? Yes, you can. Can I answer this? Yeah, please. निशांत, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। नॉर्मली हालांकि कई बार लेडीज ये कहती हैं कि कोई आदमियों से तो नहीं पूछता, इससे औरतों से सवाल क्यों पूछा जाता है, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो मैंने लाइफ को बहुत क्लियरली कंपार्टमेंटलाइज करके रखा है और नौकरी को या काम को उतनी ही प्रायोरिटी दी है जितनी वो डिजर्व करता है। ये कहना गलत है कि हमको किसी को नौकरी की जरूरत नहीं, सबको है, सबको पैसा कमाना है, सबको बच्चे को पढ़ाना है, सब कुछ है। बट मेरे साथ एक चीज थी, सो माय मदर इज बीन वेरी सपोर्टिव। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो इनिशियल ईयर्स में उन्होंने संभाला उसको, लेकिन हमारे बीच में ये बहुत क्लियर था कि जब बच्चे की डिमांड्स सिर्फ खाना पीना सोने से बढ़ के जब इमोशनल डिमांड्स हो जाती हैं, सो जब मेरी बेटी टीनेज में एंटर होने लगी और नोएडा में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है और लेकिन उसको अपनी वही स्मॉल टाउन संस्कार भी देने हैं जो अपनी फैमिली की वैल्यूज हैं, इट्स नॉट इजी टू रेज योर चाइल्ड लाइक दैट। तो मैंने न्यूज एंकरिंग से काफी बैक सीट लिया था, जिस पर हमारे सीनियर्स बहुत नाराज भी हुए थे, क्योंकि उस समय पहले क्या होता था, हम रात 10-10 11-11 बजे तक बुलेटिन पढ़ते थे। बट देन आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं, मैं घर जल्दी आऊंगी। तो एक वो बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया था। सो मैं शाम को घर आ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी बेटी को जब मेरी जरूरत हो तो मैं अवेलेबल होनी चाहिए। तो कुछ चीजों के उसूल बिल्कुल क्लियर थे कि उसके स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन है तो चाहे मैं बड़े से बड़ा असाइनमेंट छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो मैंने प्रोफेशनल और पर्सनल को हमेशा वो एक बैलेंस करके ये कि कहाँ कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या किसी एक इवेंट में, किसी घर की फैमिली की शादी में मेरा ना जाना चल जाएगा और मैं बजाय उसके काम कर लूं, इज दैट फाइन? या और पर्सनल में सबसे ज्यादा ये कि मेरी बेटी की कोई चीज कहीं अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई एम ऑन अ प्रोफेशनल असाइनमेंट। सो थ्रू आउट, तो कभी कभी कहती भी है मुझसे कि आपने मेरे लिए न्यूज एंकरिंग छोड़ दी, आप तो इतनी बड़ी, आप तो प्राइम टाइम। अब जब वो देखती है प्राइम टाइम एंकर्स को, उनकी पॉपुलैरिटी को, तो वो कहती है कई बार कि आपने मेरे लिए। बट जब आप अपने मन से करते हो कोई चीज और प्रायोरिटी सेट करके करते हो तो आपको कभी उस चीज का रिग्रेट नहीं होता। सो आई थिंक आई जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, जो काफी लोगों के और भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग बिफोर यू वर जॉइनिंग, देन आई मिस्ड आउट। थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। एक ने लिखा, डॉक्टर एनी स्टोरी ऑफ अर्थक्वेक सर्वाइवर्स। ये मैं कहना चाहूंगी, हम लोग बहुत हैरान थे जब मैं अंजार आई, बहुत ठंड थी, जनवरी 26 जनवरी की बात है, और मैं खुले में स्कूल में शूट कर रहे थे। और मैं जितने लोगों से उस समय मैंने कहा था, मैंने कहा ये शायद गुजराती स्पिरिट ही हो सकती है। आप सोचिए 10 साल पहले जिन सब लोगों ने अपने बच्चों को खोया होगा, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जनवरी की परेड में, उन माता पिता को मैंने सीरियसली उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुजराती स्पिरिट की, हम लोगों ने कॉलीग्स ने, हम लोग बहुत हैरान थे। कोई भी पेरेंट्स ना, ऑब्वियसली सब दुखी थे, सब रो रहे थे, बट दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑन। They all were talking about gratitude कि चलो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद भगवान ने हमें ये दिया। मतलब मैं बहुत हैरान थी कि यार ये कैसे लोग हैं, मतलब they've lost their child 10 years back, but they've learned how to move on and how not to keep complaining with life and all। तो वो मतलब मुझे exactly एक कहानी तो याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे याद है जो मैसेज मैं लेकर गुजरात से तब लौटी थी अंजार से, वो यही कि ये गजब लोग हैं।
ये देखिए हमारा रियो उड़ गया ऐसा तो उनकी स्पिरिट, उनके जज्बे को मैं सलाम करते हुए अंजार से लौटी थी, ये मुझे याद है। So I would like to thank you very much for your time. So thank you everyone for attending and participating in this week's Learning from Legend Series 5 and making such a positive contribution. The speaker for the next series will be Mr. Kamlesh Karamchandani, invited by Rahul Keshwani on Friday, 20th April, 5 p.m. But before that, I would like Richa Anirudh to leave us with a positive quote. My God, मेरा एक ही कोट होता है जो हर जगह आप कहीं भी अगर मुझे फेसबुक ट्विटर पे फॉलो करेंगे मैं बहुत शेयर करती हूँ, #smile no matter what। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये फेक है क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब भी थोड़ी प्रॉब्लम हो ना, अकेले में जाके थोड़ा कोशिश कीजिए, हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, और जो प्रॉब्लम है वो तो वैसी रहेगी, अभी चाहे वो लॉकडाउन हो वैसी रहेगा। फ्राउन करने से कुछ नहीं होता, सिवाय यहाँ पे जल्दी जल्दी लाइनें आ जाएंगी आपकी जिंदगी में, बुढ़े जल्दी हो जाएंगे। किसी ने लिखा #smile no, सो जस्ट स्माइल। हम लोग जितना ज्यादा, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, इट्स नॉट अ कोट बट अ मैसेज दैट आई वांट टू लीव ऑल ऑफ यू विद। अब जब हम बाहर निकलेंगे लॉकडाउन के बाद, आज शाम को मैं 6 बजे मेरी एक पोयम, हम लोग जिंदगी विद रिचा, आप प्लीज आप सब लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, आई एम पुटिंग अ पोयम आउट देयर। कभी भी स्ट्रेंजर से भी मिले ना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ट्राई एंड स्माइलिंग एट स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, बहुत अच्छा लगता है, कभी करके देखिएगा, मैं बहुत करती हूँ ये चीज। सो प्रॉब्ली वी ऑल से गुड बाय टुडे विद अ मैसेज, स्माइल नो मैटर व्हाट एंड स्माइल एट स्ट्रेंजर्स ऑल्सो। सिर्फ अपने लोगों को की तरफ मत मुस्कुराइए, अनजान लोगों की तरफ भी मुस्कुराइए। समवन, किसी का दिन बन सकता है, हो सकता है कोई बहुत उदास दुखी आया हो आपके ऑफिस में, आपका कोई, स्पेशली आप लोग सब बिजनेस वाले हैं, आपके ऑफिस में लोग होंगे, किसी कोई झगड़ा करके आया होगा, स्माइल, जस्ट स्माइल एट देम, यू विल मेक देम फील बेटर। Thank you. Thank you. It was a great learning session, and you have a lot of things to be. We will share the screenshots of the chat box with Meenal, and she will be surely sharing it with you. Sure. Thank you very much for joining and giving us your precious time. Thank you once again, Meenal. Happy birthday. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks Great. a lot.